اور جن بھائیوں تک یہ بات پہنچے، جن داعیوں تک یہ درخواستیں اور یہ گزارشات پہنچیں گی، وہ تمام بہت توجہ کے ساتھ ان باتوں پر غور کریں گے۔ حضرات، خدا نہ خواستہ اگر کبھی وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو اس وقت میڈیکل کے سٹاف کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اسی انفیکشن کے بارے میں بات کریں۔ جب سردیاں آتی ہیں اور اس وقت چھاتی کے خراب ہونے، زکام ہونے اور سردی کی وجہ سے جو جن بیماریوں کے خطرے ہوتے ہیں، تو سمجھدار ڈاکٹر اس وقت انہی باتوں پر بات کرے گا کہ اس وقت سردیاں ہیں، سردیوں میں کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ موسم سرما میں جو ڈاکٹر گرمیوں کی بیماریوں کی بات کرے گا، تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ اس ٹاپک کو لے رہا ہے جس ٹاپک کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کبھی سننے والے بھائیوں میں سب کے سب انمیرڈ لوگ ہوں اور اس وقت بیان کرنے والا کہے گا بیویوں کے حقوق ادا کرو، تو موضوع تو بہت اہم ہے مگر وہ سننے والوں کا موضوع ہے ہی نہیں۔ یا مثلا فرض کیجئے سننے والے بزرگ حضرات ہیں اور سب کی ایج جو ہے وہ 50-60 سال کے قریب ہے، اس وقت اگر ہم یہ کہیں گے کہ جوانی کی زندگی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تو سوال یہ ہے کہ سننے والوں میں تو جوان ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بولنے والے کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ آج کے دور میں، اس وقت کے ماحول میں مجھے کن چیزوں پر بات کرنی چاہیے۔ یعنی یہ سارے بولنے والے جو سٹیج پر بیٹھ کر بولتے ہوں، ممبر پر بیٹھ کر بول رہے ہوں، کرسی پر بیٹھ کر بول رہے ہوں، چاہے جمعے کا آواز کرتے ہوں، چاہے کوئی اور دینی جلسہ کرتے ہوں، یا سوشل میڈیا پر گفتگو کرتے ہوں دینی گفتگو، ان کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ آج کے سننے والوں کا موضوع کیا ہے۔ اس کے بوزن والے خاطر کم چیزوں سے ضرورت، اور اگر ہم نے کوئی بہت اچھا ٹاپک لیا مگر وہ اچھا ٹاپک سننے والوں کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو بہت اچھا ہم نے اچھے ٹاپک پر شاندار ٹاک کیا اور شاندار ہم نے لیکچر دیا، پر سننے والوں کا تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بولنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ موضوع کے سلیکشن میں بہت ہوشیاری اور خاص طور پر ماحول کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے بات کریں۔ اللہ کرے اس وقت جو مختصر سی گفتگو ہوگی، اس مختصر سی گفتگو میں وہی بات کہنے والا کہنے میں کامیاب ہو جائے جس کی ضرورت سننے والوں کو ہے۔ حضرات، پہلی بات یہ ہے کہ ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں، بہت نرم مزاجی کے ساتھ اس بات پر غور کریں کہ اگر اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا، کسی اس گھر میں پیدا کیا ہوتا جس گھر میں ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت نہیں ہے، تو ہم اس وقت کہاں ہوتے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے بہت بڑا کرم ہم پر کیا ہے کہ ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ شاید وہ انسان بہت ہی نادان ہے، شاید وہ انسان دور اندیش نہیں ہے، شاید وہ انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہا ہے، جو اس پر کبھی غور نہیں کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ایمان والے کے گھر میں جنم نہ دیا ہوتا، اگر اللہ نے مجھے کسی ایسے گھر میں پیدا کیا ہوتا جس گھر میں ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے میرے پاس زندگی کی تمام سہولیات ہوتی جو آج کے زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ عیش کی زندگی ہوتی، لگژری لائف ہوتی، آج کے زمانے میں جو چیزیں ہونی چاہیے جن کے لیے لوگ خواب دیکھتے ہیں، عالی شان بلڈنگ، عمدہ گاڑیاں، زندگی کی فیسلٹیز، دنیا بھر کے ٹورز اور بینک بیلنس اور شوق پورا کرنے کے لیے تمام چیزیں، فیشن والی زندگی، یہ ساری چیزیں اگر ہوتی، لیکن ایمان نہ ہوتا تو ہم کون سے عالم میں ہوتے؟ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے ہم کہاں ہوتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا، حالانکہ ہم میں سے کسی شخص نے کوئی مطالبہ، ہم میں سے کسی شخص نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی درخواست نہیں پیش کی تھی، کوئی مطالبہ نہیں رکھا تھا، نہ ہمارا کوئی حق اللہ کے ذمہ تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو کوئی ڈر بھی نہیں تھا کہ اگر میں نے ان کو ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں کیا تو میرے خلاف نہ جانے کی کیا کر لیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جس دن ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس دن ہو سکتا ہے یقیناً ہزاروں انسان پیدا ہوئے ہوں گے، ڈاٹا موجود ہے کہ ایک منٹ کے اندر دنیا میں کتنے مرتے ہیں اور کتنے آتے ہیں، اور آنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، مرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، ریشو تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک سیکنڈ کے اندر 102 آدمی مرتے ہوں گے تو اسی ایک سیکنڈ کے اندر 104 آدمی آتے ہوں گے، اسی سے پاپولیشن بڑھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ہر اگلے سال آبادی بڑھی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے مرنے والوں کی تعداد کے مقابلے میں۔ تو دنیا میں ڈاٹا آتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں دنیا میں کتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس سیکنڈ میں ہم اس دنیا میں آئے یا جس دن ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس دن جو کئی ہزار لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، ان کئی ہزار لوگوں میں ہم بھی آئے، ہم اگر اس گھر میں آتے جس گھر میں ایمان نہیں ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا وہ گھر، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا گھر ہوتا، اور چاہے وہ بہت ہی پسماندہ ہوتا یا بہت ہی ہائی فائی گھر ہوتا، اور ایمان والے نہ ہوتے، تو ہم اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں ہوتے۔ تو غور کر کے پھر سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنا شکر اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے کہ اللہ نے مشکل امتحان میں ہم کو نہیں ڈالا۔ ظاہر ہے جو انسان ایمان سے محروم گھر میں پیدا ہوا تو ایک امتحان میں ہے وہ کیا کہ وہ اسی کفر کی زندگی گزارے گا یا اس کفر کی زندگی کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آئے گا۔ اور ایمان کی طرف آنے کے لیے اس کو پہلے سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، پھر وہ دیکھنا ہوگا کہ میں کتنے بڑے پہاڑ کو کراس کروں گا، اس پہاڑ کو کراس کرتے ہوئے مجھے کیا کیا جھیلنا پڑے گا، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کس کس طبقے کی طرف سے کیا کیا ریئیکشن آئے گا، اور سب کو مجھے فیس کرنا ہے، تب میں یہ کر سکوں گا۔ اور اس میں آج بھی، ہر دور میں آج بھی لاکھوں انسان ایسے ہیں جو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، مگر ساتھ میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں گے تو مشکلات کیا آئیں گی، گھر چھوڑنا ہوگا، اسٹیٹس بدل جائے گا، مشکلات آئیں گی، ملازمتیں چھوٹ سکتی ہیں، خاندان مخالف ہو جائے گا، گھر سے نکلنا پڑے گا، آگے نہ جانے کہیں ٹھکانہ ملے گا یا نہیں، ہمیں کہیں کوئی ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں۔ میرے بھائی، ان مشکلات کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ مشکلات ہم پر بیتی نہیں، کیونکہ ہم وہ گزری نہیں۔ کبھی ایسے لوگوں سے ملنا چاہیے
کہ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हो, फिर वो अपनी कहानी सुनाएंगे कि हमने किन किन मुश्किलात को अबूर किया, क्या क्या परेशानियां झेली, कितने अरसे तक हम सोचते रहे और उसके बाद फिर हम यहां तक पहुंचे। कुछ दिनों पहले, जिसमें 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, मुझे किसी खातून ने फ़ोन किया और उसने ये बताया कि मैं फलानी किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रही हूँ और पिछले 2 या 3 साल से मैंने इस्लाम को स्टडी किया और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मुझे मुसलमान बनना चाहिए। मुझे किसी ने दावत नहीं दी, मुझे किसी ने कोई बात नहीं बताई, मैंने खुद ही नेट पर इस्लाम को पढ़ा और इस्लाम की एक चीज़ को मैंने ठीक तरह से चेक किया और मुझे यकीन है कि सच्चा दीन यही है। अब अगर मैं मुसलमान बनती हूँ तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात हैं। उसने ये भी कहा कि जिस घर से मैं बिलोंग करती हूँ, शायद वहाँ मैं ये जाहिर भी नहीं कर सकती कि मैं ये करना चाहती हूँ, और अगर मैं जाहिर करूँगी तो हो सकता है कि मेरी जान को भी खतरा हो। उसके बाद वो ये कहती है कि आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? तो मैंने कहा मैं कोई मदद नहीं कर सकता, मैंने कहा मैं कोई मदद नहीं कर सकता, हमारे पास ऐसे वसाइल, ऐसी सोर्सेज नहीं है। ठीक है, अब वो कहाँ जाएगी? और वो किसी ने इस्लाम की दावत नहीं दी बकौल उसके। ठीक है, अब आगे उसको क्या क्या मुश्किलात आएंगी, आगे किन किन मुसीबतों का से सामना होगा, और या फिर हो सकता है इस्लाम कबूल करने के शौक में वो जिंदगी तो गुजारेगी मगर इस्लाम कबूल नहीं कर पाएगी, और हो सकता है कबूल करे तो बाद में क्या क्या मुसीबतें आएंगी ये वो जाने, उसका अल्लाह जाने। लेकिन हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते, हम उनको जगह नहीं दे सकते, वगैरह वगैरह। ये मैं मिसाल समझा रहा हूँ कि इस्लाम कबूल करने के लिए लोग तैयार होते हैं लेकिन आगे मुश्किलात आती हैं, और करोड़ों इंसान वो है जिनको पता ही नहीं कि हम कुफ्र की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो कुफ्र को भी जानते नहीं। बेशुमार इंसान वो हैं कि बस वो इंसान तो हैं लेकिन आगे उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इतना है, क्या? जैसे जानवर है, खाएगा पिएगा ऐश करेगा मर जाएगा। उनकी ज़िंदगी भी इतनी है कि साहब जितना अच्छे से अच्छा ऐश करो, जितने तुम्हारे पास सोर्सेज होंगे उतना तुम मजे की ज़िंदगी गुजारो। ठीक है, बस ज़िंदगी नाम है इंजॉय करने का, इंजॉय करो, बुढ़ापे में मर जाओ, खत्म कहानी इतनी उनकी यहाँ। तो वह उनकी ज़िंदगी को कोई मकसद ही नहीं है। उनकी ज़िंदगी का मकसद ऐसे ही, जानवर भी पैदा होता है, वो पेट भी भरता है और अपने सेक्स की ज़रूरत भी वक्ती तौर पर पूरी कर लेता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, ऐसे भी इंसान भी। अल्लाह ने इस तमाम से हमें बचाया और ईमान वाले के घर में पैदा किया, हम इस पर साहिब ईमान हैं। जो लोग ईमान वाले नहीं हैं उनकी हालत क्या है? कि उनकी हालत यह है कि वो बदतरीन किस्म के बेवकूफ़ है, निहायत बदतरीन किस्म के बेवकूफ़, चाहे वो कितनी तालीम याफ्ता क्यों ना हो। क्यों? तो जवाब यह है, जिस ज़मीन पर वो रह रहे हैं, जिस ज़मीन के पैदा की हुई तमाम चीज़ें वो खा रहे हैं, जिस ज़िंदगी को वो गुजार रहे हैं, जिस ज़िंदगी को गुजारने के लिए उनको हवा चाहिए, हवा नहीं ऑक्सीजन, पानी चाहिए, ग़िज़ाएँ चाहिए, बैलेंस मौसम चाहिए, जान चाहिए, और इस जिस्म में सब कुछ होना चाहिए, इस ज़िंदगी की अता करने वाले का इनकार करके फिर वो कहते हैं हम यही ज़िंदगी गुजारेंगे। तो बेवकूफ़ और क्या है? यानी जिस घर में आप रह रहे हैं, आप कहते हैं कि सब घर बहुत अच्छा है, फैसिलिटी सारी हैं, बहुत अच्छा बनाने वाले ने बनाया, खाने की सारी चीज़ें हैं, आराम की सारी चीज़ें हैं, जो आप सोच सकते हो वो सारा उस घर में है, और आखिर में कहते हैं सब कुछ है मगर मैं उसको नहीं मानता जिसने घर बनाया, मगर होंगे इसी घर में, तो रहेंगे इसी ज़मीन पर मगर ज़मीन बनाने वाले को नहीं मानेंगे, खाएंगे इसी ज़मीन के पैदा की हुई चीज़ें मगर उसको नहीं मानेंगे जो ये पैदा कर रहा है, पिएंगे वही हवा ऑक्सीजन मगर उसको नहीं मानेंगे जो ये ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है और जिस ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहा है। पानी के बगैर जिंदगी नहीं, पानी के बगैर जिंदगी नहीं, इस पानी से सारे फायदे उठाएंगे, साथ कहेंगे हम नहीं मौत से मानते जिसने पानी उतारा और जो पानी बरसा रहा है। बॉडी के एक चीज़ से फायदा उठाएंगे लेकिन साथ में कहेंगे हम उसको नहीं मानते जिसने बॉडी बनाई है। तो हालात भी फैसला करिए कौन है? हाँ, इंसान को कभी ये भी होता है कि एक तरफ से वो पढ़ा लिखा होता है और एक तरफ से वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होता है और उसे अपनी बेवकूफ़ी का पता नहीं चलता। क्यों? दुनिया में कुछ चीज़ें बहुत कीमती और साथ में साइड इफेक्ट है। ओहदा बहुत ऊंची चीज़ है, इसमें और साइड इफेक्ट भी है। उस साइड इफेक्ट में एक साइड इफेक्ट है तकब्बुर आता है, तो ओहदे वाला समझता है मैं पता नहीं क्या हूँ, तब तक जब तक ओहदा है, जो ओहदा निकल जाए तो खत्म, सारी हवा निकल जाती है, फिर आदमी जमीन पर आ जाता है। पाँच मैं सामूल बुकूत होता जाता हूँ हवास में। तो दौलत, ओहदा, जवानी, हुस्न, ये सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ साइड इफेक्ट लगा हुआ है। इसी तरह से कभी कभी इंसान की पढ़ाई की वजह से गुमराही में फंस जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशुमार इंसान वो है जिनका इल्म उनको गुमराह कर देता है, इल्म गुमराह कर देता है, ठीक, रॉन्ग नॉलेज उनको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। दुनिया में अतीस्ट भी हैं और वो बड़े फख्र के साथ कहते हैं अतीस्ट है, लेकिन आगे जिन जंगलों में वो फंसते हैं उनका हाल उनके पास नहीं है। हम जब कहते हैं कि साहब बताइए इस कायनात को बनाने वाला जो है आप उसको मानते नहीं, आप बनाओ कायदा बनी कैसे है, इसका कोई जवाब नहीं दे सकते, और बस वो लंबी बातें करेंगे, खुलासा उसका कुछ नहीं निकलता, उनका हाल ही नहीं निकल सकता। आप अगर ये कहेंगे बिस्किट बहुत अच्छा है मगर बना खुद ही है, जनाब रिश्ता बहुत अच्छा बना हुआ है मगर बना खुद ही है, अब रस बहुत अच्छा है मगर बना खुद ही है। हालांकि हर चीज़ बताती है इसके पीछे कहानी क्या है। हमारे हाथ अगर बिस्किट है तो ये बिस्किट बता रहा है कि कहीं जमीन से ये गंदुम उगा है, कहीं फ्लोर मिल में इसका आटा बना है, फिर बिस्किट के लिए जो आटा होता है वो उसका आटा अलग किया गया है, फिर बिस्किट बनाने वाले ने बहुत अच्छी तरह से ये देखा है कि बिस्कुट कैसे बनता है और उसको ज़्यादा टेस्टफुल कैसे बनाया जा सकता है, और बड़ी मेहनत के बाद फिर उसने वो फैक्ट्री बनाई है, फिर उसमें शुगर मिलाया है, क्रीम मिलाया होगा, टेस्ट ज़्यादा बनाने के लिए और क्या क्या मिलाया होगा, और उसके बाद फिर बहुत अच्छी किस्म के ओवन होंगे, उन ओवनों में वो बिस्किट तैयार हुआ होगा, फिर पैकिंग हुई होगी, पैकिंग होकर के फिर हम तक पहुंचा होगा, फिर उसका एडवर्टाइज हुआ होगा, फिर लोगों ने उसको देखा होगा बहुत अच्छा, फिर टेस्ट करके भी खाया होगा, फिर हम तक पहुंचा है। ये सारी कहानी बता रहा है ये जो हाथ में बिस्किट है। अगर एक आदमी कहता है ये बिस्किट बहुत अच्छा है मगर बना खुद ही है, तो आदमी फैसला करेंगे कौन है? तो अल्लाह ने हमको ऐसे बेवकूफ़ी की दलदल में फंसने से बचाया है और ईमान की दौलत अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबीला आया, उस कबीले को कहते थे कबीला बनु तमीम। उस कबीला बनु तमीम के आने पर बहुत सारे वाक़यात हुए। उन वाक़यात में से एक वाक़या ये भी हुआ, एक शख्स ने उनमें से कहा हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में कि जनाब हमारा आप पर एहसान है कि हमने आपका दीन कबूल किया, समझो मिन्नत ऐसा तो हम दीन कबूल, हमारा आप पर एहसान है कि हमने आपका दीन कबूल किया। तो अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं फरमाया। अब तक कुरान की आयत नाज़िल हो गई, उसमें अल्लाह ताला शान फरमाते हैं
क्या फरमाते हैं, यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, ये लोग एहसान जतला रहे हैं आप पर कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। कुल, आप कह दीजिए ला तमुन्नू अलैया, मुझ पर कोई तुम्हारा एहसान नहीं है, अल्लाह का तुम पर एहसान है, तुमको ईमान की दौलत अता कर दी। बल्ला यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, अल्लाह ताला से मिन्नत, अल्लाह का तुम पे एहसान है, तुमको ईमान की नियामत, ईमान की दौलत अता फरमाई है। बस इसी तरह से अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हम पर है कि हमको ईमान की दौलत, ईमान की नियामत नसीब हुई है। यानी हम ये तस्लीम करते हैं ये सारी कायनात खुद नहीं बनी है, न बन सकती है, और हम ये तस्लीम करते हैं ये कायनात खुद चल नहीं रही है, चल भी नहीं सकती। कश्ती खुद नहीं बनती, खुद नहीं चलती, गाड़ी खुद नहीं बनती, खुद नहीं चलती, जहाज खुद नहीं बनता, खुद नहीं चलता, घड़ी खुद नहीं बनती, खुद नहीं चलती, कोई चीज़ तो खुद बनती है ना खुद चलती है। हमारे बदन पर अगर कपड़े हैं ये खुद नहीं बने हैं, किसी टेक्सटाइल मिल में पहले कपड़ा बना है, फिर कपड़ा बनाने वालों ने पूरी महारत के साथ उसकी बनावट में रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है, फिर उसकी कलर स्कीम बनाई है, फिर अच्छे से अच्छा जो कुछ वो बना सकते हो वो बनाया है। उसके बाद फिर उसकी पैकिंग हुई, फिर पैकिंग होते होते फिर हमारी मार्केट में पहुंचा होगा, फिर हम गए या हमारे घर वाले गए, वहाँ से कपड़ा खरीदा, फिर टेलर मास्टर के पास गए होंगे, और टेलर मास्टर ने आपका मेजरमेंट लिया होगा, फिर कटिंग की होगी, फिर सिलाई की होगी, उसके बाद ये कपड़ा आपके जिस्म पर है। हम ये मानते हैं। अब अगर कोई कहेगा जनाब वो टेक्सटाइल मिल हमने देखा ही नहीं लिहाजा मानते नहीं, तो जनाब आपकी न देखने से वो टेक्सटाइल मिल थोड़ी खत्म हो गई, वो है। आप कहेंगे जब हमने देखा नहीं हम मानेंगे क्यों, इससे बड़ा बेवकूफ कौन आदमी होगा। आप कहते हैं चूंकि मैंने देखा नहीं लिहाजा वही नहीं। बिजली चल रही है, हमें से किसी ने वो पावर हाउस नहीं देखा, हमें पता भी नहीं ये बिजली कौन से पावर हाउस से आई है, वो कश्मीर में है या कश्मीर से बाहर है, लेकिन हम सबका यकीन कहीं है। बिजली बता रही है कि इसके पीछे जितनी चीजें होनी चाहिए वो सारी हैं, तार, खंबे, ग्रिड स्टेशन और पीछे पावर हाउस और उसके साथ कनेक्शन बराबर, ये सारी चीजें बता रही है, तब हमारे पास पावर है। अब अगर कोई कहेगा जनाब पावर बहुत अच्छा है, लाइट बहुत अच्छी है, फैन भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहे हैं, हीटर भी काम कर रहा है, ये सब कुछ है, मगर मैं नहीं मानता कहीं पावर हाउस है क्योंकि मैंने देखा नहीं, तो कैसे हो सकता है। बहरहाल अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत अता फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बहुत नादान है वो इंसान, बहुत ही नादान है वो इंसान जिसको कभी इसका एहसास न हुआ कि अगर अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत अता न की होती, अगर मैं ईमान वाले के घर में पैदा न हुआ होता तो न जाने में कहाँ होता, और कहाँ होने में क्या क्या होता है। और वो अल्लामा इकबाल ने कहा है, वो एक सजदा जिसे गरा समझता है तू, देता है हज़ार सजदों से आदमी को नजात। इस एक सजदे ने तुमको बचाया और न जाने किन किन के सामने तुमको माथा टेकना था और किन किन को तुम्हें खुदा बनाना था। जनाब दुनिया में वो लोग भी हैं जो चूहों को खुदा मानते हैं, और वो लोग भी हैं जो कहते हैं शैतान हमारा खुदा है, और वो लोग कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं। ठीक, बुखारी शरीफ में हदीस है, अरब का एक कबीला ऐसा था कि जब वो सफर में जाते थे तो अपना खुदा अपने साथ ले जाते थे, जो अच्छा वाला पत्थर होता था, जो खूबसूरत पत्थर होगा तो उनको ये सारा रास्ते में हमारा खुदा है, जब साथ में थैले में भर दिया उसे, ये हमारा खुदा है, रास्ते में चाहिए हमें खुदा। उसके बाद अगर कहीं दूसरा खूबसूरत पत्थर नजर आया तो उसको फेंकते थे, उसको उड़ाते थे, कहते हैं वो खुदा है। फिर जब कभी गुम हो जाता था तो सोचते थे कहां से पत्थर लाएंगे, तो जब डेजर्ट में फंस जाते थे और वहां पत्थर नहीं होता था तो क्या करते थे, ऊंटनी का दूध निकालते थे और रेत जमा करके उसमें दूध मत फिर गोला बनाते थे, कहते ये हमारा खुदा है। तो वो खुदा जो अपने हमारे हाथ से बना फिर हमारा खुदा बन गया। एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं अल्ताफ हुसैन हाली, आप लोगों ने बचपन में एक नज़्म सुनी होगी, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मुरादें, ये अल्ताफ हुसैन हाली की नात है। और अल्ताफ हुसैन हाली मिर्जा अज़लुल्लाह खान गालिब के शागिर्द थे, और मिर्जा अज़लुल्लाह खान गालिब की सवार हयात अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है, हयात गालिब। और अल्ताफ हुसैन हाली सर सैयद अहमद खान के भी शागिर्द थे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई है, इसलिए अल्ताफ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद खान की सवार हयात भी लिखी है, उसका नाम है हयात जावेद। तो अल्ताफ हुसैन हाली एक शायर थे जो पानीपत के रहने वाले थे, ठीक है। उस अल्ताफ हुसैन हाली बहुत बड़े शायर थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त शायर थे, बड़ी खुसूसियत थी उनकी शायरी की। तो उन्हीं में एक वो है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मुरादें गरीबों की बात, इसी अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की मालूम है कौन करता है, ये सबसे ज्यादा तरक्की कौन करता है, उसने कहा पत्थर। पत्थर कैसे, कहा पत्थर तराशने से पहले पत्थर होता है, तराशने के बाद खुदा बन जाता है, बीच में कहीं रुकता ही नहीं। बुतो शाबाश तरक्की इसको कहते हैं, न तरशे थे तो पत्थर थे, तो तरशे तो खुदा बन गए, नीचे बीच में कहीं रुका ही नहीं। अब इसमें वो तंज क्या कर रहे हैं वो समझ आ जाने वाला। तो मेरे भाई अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत अता फरमाई है। इस कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा आइडियल लाइफ किसी इंसान की नहीं है। और हम मुसलमान तो कहेंगे क्योंकि हम उनकी उम्मती हैं, हमारा ईमान हमारा अकीदा यही है। नहीं, जो लोग उनको नबी नहीं मानते वो भी जब उनकी सीरत पढ़ते हैं तो बेइख्तियार होकर कहते हैं ऐसी आइडियल लाइफ किसी की। मोहम्मद रसूलुल्लाह बहसत जवान, मिसाली जवान। मोहम्मद रसूलुल्लाह बहसत हस्बैंड, ऐसा शौहर कोई नहीं है, गवाही उनकी सारी बीवियां देती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह बहसत दोस्त, उनका दोस्त कहता है ऐसा दोस्त कोई नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह बहसत रूलर, इस कायनात में वैसा कोई रूलर था ही नहीं। 10 लाख मुरब्बा मील पर उनकी हुकूमत चल रही थी और घर में फाका था, घर वालों को खाने का इंतजाम नहीं। 10 लाख मुरब्बा मील की मुल्क पर हुकूमत है, ठीक है, और घर में फाका है, ठीक है। घर में खजूरों की बोरी भरी हुई है गरीबों के लिए, तो उनके नवासे हजरत हसन ने उस बोरी में से एक खजूर निकाली, तो अल्लाह के नबी ने मुंह से फौरन निकाल दी, तुम्हारे लिए नहीं है, ये गरीबों का हक है, तो मुंह से खजूर निकाल दी। जिसने उम्मत से ली हुई ज़कात अपने खानदान के लिए हराम कर दी कि मेरा खानदान नहीं खाएगा इसमें से, ताकि लोग ये न कहें कि लोग इसे जमा कर रहे हैं और खुद खा रहे हैं। जब अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत होने वाले थे तो आयशा कहती हैं कि घर में खाने का इंतजाम नहीं था, और अल्लाह के नबी ने अपनी ज़रा गिरव रखी, मॉर्गेज रखी, और वहां से थोड़े से जौ मंगवाए और वो घरों में तकसीम कर दिए, तुम्हारा खाना है, खुद ही जौ का आटा बनाओ और आटे के बाद फिर उसको घोल करके खाओ। ये नबी के घर वालों का हाल है, और नबी दुनिया से रुखसत चले हुए, और वो जो ज़रा है वो यहूदी की बात बन रही है। 10 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत चल रही है उसके घर का हाल यह था। आपने सुना होगा एक मशहूर राइटर गुजरा है माइकल हार्ट के नाम से, उसने किताब लिखी है जिस किताब में उसने कोशिश की कि इंसानी तारीख में से 100 आदमियों का वो इंतखाब करे, तो 100 आदमी चूज किए उसने। ये पूरी इंसानी तारीख में टॉप 100 आदमी वो हैं जिन्होंने तारीख पर बहुत असर डाला, सोसाइटी पर बहुत असर डाला है। उसका इंतखाब सही है या गलत है हमें उससे बहस नहीं, उसने जिन लोगों को चूज किया है उनसे ज्यादा अच्छे लोग और हो सकते हैं या नहीं, हमें उससे भी बहस नहीं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन इतनी बात जरूर हम कह सकते हैं कि माइकल हार्ट मुसलमान नहीं था,
वो मशरिक का नहीं था, वो यूरोपियन था। वो स्टार्ट कर सकता था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात से, क्योंकि वो ईसाई रहा होगा। वो स्टार्ट कर सकता था किसी यूरोपियन स्कॉलर के नाम से, किसी यूरोपियन साइंटिस्ट के नाम से, किसी यूरोपियन रूलर के नाम से, किसी यूरोपियन किसी भी फर्द के नाम से ले सकता था। वो यूरोप में जब उसने 70-80 के करीब यूरोपियन लोग उसमें शामिल किए हैं, तो किसी भी नाम से स्टार्ट कर सकता था। वो अगर कम्युनिस्ट होगा तो कार्ल मार्क्स के नाम से ले सकता था, या लेनिन के नाम से आगाज कर सकता था अगर वो कम्युनिस्ट रहा होगा। और अगर वो साइंटिस्ट रहा होगा तो आइंस्टाइन के नाम से ले सकता था, न्यूटन के नाम से कर सकता था। या अगर वो रूलर रहा होगा तो और किसी फलसफी होगा, तो बहुत बड़े बड़े फलसफी गुजरे हैं। और अगर ईसाई होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से, लेकिन उसने आगाज किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे पहले। और उसने लिखा भी है उसमें कि लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं कि आपने इनका आगाज क्यों किया, तो जवाब यह है कि इनसे ज्यादा कामयाब इस धरती में कोई इंसान हुआ ही नहीं, इनसे ज्यादा कामयाब इसमें। और हर एतबार से, मजहबी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी कामयाब तरीन इंसान और दुनियावी एतबार से भी कामयाब तरीन इंसान, जिसने स्टार्ट किया जीरो से और 10 साल के अरसे में एक पूरा मुल्क खड़ा कर दिया। और पूरे मुल्क के खड़ा करने में इंसानों का खून नहीं बहाया, जबर कहीं नहीं हुआ, किसी एक आदमी पर भी जबरन अपना मजहब थोपा नहीं गया, किसी एक आदमी पर कोई जुल्म नहीं हुआ। और मक्का जब फतह हुआ तो किसी एक औरत को भी नहीं चढ़ा गया। मक्का जब फतह हुआ तो कोई एक आदमी में नाहक कत्ल नहीं हुआ। और दुनिया जानती है कि जब एक कौम दूसरे मुल्क में दाखिल होती है तो क्या क्या करती है, किस तरह से खून बहाती है। दुनिया की तारीख हर सफ़े पर लिखा हुआ है कि कौन सी कौम किस मुल्क में दाखिल हुई तो क्या क्या किया वहां। उसमें महज़ब से महज़ब लोगों का हाल भी तबाह हाल है, बुरा हाल है। कदीम ज़माने में भी और के मॉडर्न ज़माने में भी यही होता है कि जब कोई कौम किसी मुल्क में दाखिल होती है तो उनके फौजी और उनके बड़े वहाँ के लोगों के साथ क्या करते हैं, वहाँ की दौलतें कैसे लूटते हैं, वहाँ का कत्लेआम कैसे होता है, वहाँ की औरतों के साथ क्या क्या होता है। ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात थी कि जब आपने मक्का फतह किया और पूरा मुल्क कब्जे में किया, किसी एक औरत को नहीं चढ़ा गया, किसी एक आदमी का नाहक कत्ल नहीं हुआ, किसी एक घर को नहीं लूटा गया, किसी एक का एक दिरहम नहीं उठाया गया। भाई गवाह, मैंने बहुत पहले एक रिसाला पढ़ा था, मेरे पास रिसाला मौजूद है, मेरे पास मौजूद। ये मैगजीन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकलता है और आज से नहीं, सर सैयद अहमद खान के ज़माने से वो मैगजीन निकल रहा है। उसका नाम है तहज़ीबुल अखलाक और सर सैयद अहमद खान ने खुद उसका इजरा किया था। आज भी निकलती है वो मैगजीन आज भी निकलती है। तो उसका एक शुमारा मेरे पास है, उसमें लिखा था कि साउथ अफ्रीका का एक लीडर बहुत दिनों तक जेल में रहा है, 20-25 साल के बाद उसको जेल से निकाला गया था और उसके बाद फिर वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट भी बना। मुमकिन है आप में से बहुत से लोगों ने उसका नाम सुना होगा। उसका वाकया उस मैगजीन में लिखा है। वाकया यूं लिखा है कि जब वो प्रेसिडेंट थे तो एक दिन वो शहर का दौरा करने के लिए निकले बहैसियत प्रेसिडेंट। और जाहिर है प्रेसिडेंट जब शहर का दौरा करने निकलेगा तो सिक्योरिटी और दूसरा स्टाफ कैसे हरकत में होगा ही। शाम को देर हो गई तो प्रेसिडेंट साहब ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि आज जी चाहता है किसी रेस्टोरेंट पर खाना खाएंगे। उसने कहा साहब ठीक है। तो अब जाकर उसने रेस्टोरेंट का सिलेक्शन किया होगा, फिर रेस्टोरेंट में जाकर चेकिंग हुई होगी, फिर वहाँ सिक्योरिटी लग गई होगी और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब अंदर आ गए खाना खाने के लिए। तो जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचे उसमें कुछ लोग पहले से खाना खा रहे होंगे, तो एक कोने में एक साहब खाना खा रहे थे। तो जब प्रेसिडेंट अंदर आ गया तो वो देखा हैरान हो गया और वो भी घबरा गया, वो घबरा गया। बाद प्रेसिडेंट साहब आगे बैठे, ज़ाहिर चारों तरफ सिक्योरिटी भी होगी, उसके स्टाफ के लोग होंगे, सेक्रेटरी भी न जाने कितने रहे होंगे और वो आदमी कोने में कपा रहा है, घबरा रहा है, बार बार देखता है, परेशान है बहुत। तो प्रेसिडेंट साहब ने उसे देख लिया और बार बार उसे देखते रहे, उसके घबराहट को भी उन्हें महसूस कर लिया। तो अपने सेक्रेटरी से कहा उस आदमी से कहो यहीं आ जाए। तो सेक्रेटरी साहब गए, कहा आपको प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं यहीं आ जाओ हमारी टेबल पर। चुनाचे वो बेचारा न चाहते हुए भी अपनी वो ट्रे जिसमें उसके खाने पीने की चीजें होंगी वो उसने उठाई और कांपते हुए आया और उनके सामने बैठा। मगर जब वो बैठा तो और ज्यादा कपकपी हुई और ज्यादा घबरा रहा है। सब लोग उसको देखकर हैरान है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब कोई खास मुतासिर नहीं है। अब कभी कभी तो देखते रहे, जबान से कुछ नहीं कहा, अब वो कांपता रहा और चुपके चुपके देखता भी था, घबराता भी था। ये लिखा है उसमें। बारह जब खाना वाना खत्म हो गया तो इस प्रेसिडेंट साहब ने सेक्रेटरी से कहा इससे कहो तुम चले जाओ, पेमेंट हम खुद ही कर देंगे, तो तुम पेमेंट कर देना इसका भी। उसने कहा कि साहब सर कह रहे हैं आप जाओ, तो पेमेंट हम खुद ही करेंगे। तो बारह वो कांपता हुआ निकल गया। सेक्रेटरी साहब ने प्रेसिडेंट साहब से कहा ये बेचारा पता नहीं किस परेशानी में है, जितनी देर ये जहाँ रहा कांपता रहा, घबराता रहा, पता नहीं क्या परेशानी है इसको, या बीमारी है कोई। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कोई बीमारी नहीं, इसका सारा हाल मुझे मालूम क्या है। अब वो सुना रहा है, क्या कहता है, कहते जब मैं जेल में था इसकी ड्यूटी थी मुझे पानी पिलाना। खास तौर पर जब मेरा इंट्रोगेशन होता था तो उस वक्त इसकी ड्यूटी थी, जब मैं बेहोश हो जाता था तो मुझे पानी पिलाना था। लेकिन उस वक्त ये पानी नहीं, ये मेरे मुंह में पेशाब आता था। उसको ये अंदाजा नहीं था कि वक्त ये भी आएगा कि मैं प्रेसिडेंट होगा, और उसको ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि मैं ट्रेस हो जाऊंगा, मैं पहचान लिया जाऊंगा। अब जब उसने मुझे देख लिया तो ये सोच रहा होगा मेरी अब खैर नहीं, अब वो जेल की सारी कारस्तानी का अब मुझसे बदला लिया जाएगा क्योंकि मैं पहचान गया। तो इसलिए ये घबरा रहा था और उसका यही टेंशन होगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने वो सब कुछ जो किया है उसके बदले में मुझे ये साहब, क्योंकि आप तो फुल पावर में है, बल्कि मुल्क का सबसे बड़ा औहदा उसी के पास है, अब ये कुछ भी मेरे साथ कर सकता है। ये सब सुना करके फिर नेल्सन मंडेला ये कहता है, आप तमाम सुन लें, मैंने जेल में प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है। मक्के में जिस तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया था मैंने सबको माफ कर दिया, मैंने वही इरादा किया था अगर मैं जेल से बाहर आ गया तो मैं सबको माफ कर दूंगा। तो मेरी तरफ से उसको माफ है। नेल्सन मंडेला रोल मॉडल बना रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह। और उसने कहा मैं इसके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लूंगा, अगर तुमसे हो सके उसको जाओ कहो कि तुम बेफिक्र हो, तुम्हारे खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, जो तुमने किया है तो किया। रोल मॉडल मेरे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम नबी बनते हैं। और अगर ईमानी जज्बात की बात मैं कहूंगा तो मैं आपसे सच कहता हूं कि मेरी और आपकी, और खास तौर पर आप में से जो इस वक्त यंग बॉय हैं, आप में से जो इस वक्त यूथ हैं, आप में से जो इस वक्त टीन एज की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपकी मोहब्बत आपके माँ बाप के दिल में उतनी नहीं है जितनी मोहब्बत आपकी आपके नबी के दिल में है। वजह उसकी यह है कि अल्लाह के नबी बार बार कहते थे कि मेरी उम्मत के जवान जब बिगड़ने लगेंगे फिर क्या होगा। सच पूछिए, आपके बिगड़ने का गम आपके माँ बाप को होगा, जरूर होगा, मगर उतना नहीं जितना गम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आपकी जिंदगी अच्छी बन जाए, आपके माँ बाप को, आपके
बहुत सारों को बहुत शौक होगा, बहुत चाहत होगी आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बन जाए, लेकिन जितनी चाहत आपकी जिंदगी के अच्छे होने की आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसी को नहीं। तो अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत अता फरमाई है। ईमान के माना क्या है? हम मानते हैं कायनात खुद नहीं बने, सो बनाने वाला कोई है। हम मानते हैं कि मुझे पैदा करने वाला कोई है, पैदा करने वाले के बगैर मैं कैसे हूं? एक बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि मैं हूं इसलिए खुदा भी है, मैं हूं इसलिए खुदा भी है। क्यों? मैं हूं का मतलब मेरा बनाने वाला कोई है। उससे किसी ने पूछा मतलब क्या लगा जंगल में झोपड़ी है इसका मतलब कोई बनाने वाला है, तो खुद तो नहीं झोपड़ी बनेगी। क्या सड़क पर अगर खून गिरा है इसका मतलब यह है कि कोई जख्मी हुआ है? अगर सड़क पर गोबर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि कोई जानवर यहां से गुजरा है। अगर कहीं केले का छिलका पड़ा हुआ है इसका मतलब किसी ने खाया है। अगर कहीं बिस्कुट का कवर पड़ा हुआ है इसका मतलब यह है कि किसी ने बिस्कुट खरीदा है, खाया और कवर फेंका है। हर चीज, अगर कहीं धुआं है तो अलामत है कि कहीं आग जल रही है। अगर कायदा चल रही है इसका मतलब कोई है जिसको चला रहा है। अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो यह अलामत है कि कोई कंपनी है, चाहे वो एप्पल है या कोई है, मगर है। और कहीं फैक्ट्री में ये बहुत अच्छा मोबाइल बना है और फिर होते होते आपकी मार्केट में पहुंचा है, फिर आपने इसको खरीदा है, और फिर अगर ये अब आपका मोबाइल फंक्शन में है तो इसका मतलब यह है कि कोई है जिसको फंक्शन में रखे हुए है। अगर ये मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है इसका मतलब यह है कि किसी ने इसको रिकॉर्डर पर रखा है। तो हर एक्शन बता रहा है कि इसके पीछे कोई है। हर कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि कोई कंस्ट्रक्ट करने वाला है। हर क्रिएशन बता रहा है कि कोई ना कोई क्रिएशन है। हर डिजाइन बता रहा है कि पीछे से कोई डिजाइनर है। ये तो नहीं हो सकता कि डिजाइन बहुत अच्छा है, डिजाइनर कोई नहीं। कलर स्कीम बड़ी शानदार है मगर पीछे की कलर स्कीम किसी की भी नहीं हो सकता। तो अक्ल के भी खिलाफ है, तजर्बा के भी खिलाफ। तो हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। वो कुरान जो उस वक्त आया जब दुनिया में साइंस नहीं, जो उस वक्त आया जब दुनिया में मालूमात नहीं, और कुरान वो बोलता है जो आज दुनिया कह रही है। बिल्कुल बराबर 1400 साल पहले जो कुरान में आया आज की साइंस वही कहती है। साल नहीं कई सौ साल की मेहनत के बाद इंसान ने जो पाया कुरान ने 1400 साल पहले वो पहले दिन कह दिया। मां के पेट में बच्चा कैसे बनता है कि मर्द के जिस्म से सेमन, औरत के जिस्म से एग निकल करके जगह जमा हो जाते हैं। मर्द के जिस्म से सेमन आया, औरत के जिस्म से एग निकल करके दोनों जमा हो गए। अब इसके बाद आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। 9 महीने बाद वो इंसान बाहर आता है। इस बीच में क्या क्या हुआ ठीक है ना, इंसान नहीं बता सकता था। कुरान ने पहले दिन कहा इस बीच में ये होता है, ये होता है, ये होता है और ये, और आज की सारी एम्ब्रियोलॉजी की साइंस ठीक वही बताती है। एम्ब्रियोलॉजी का सबसे बड़ा माहिर डॉक्टर किकमूर, ठीक है, उसने जद्दा यूनिवर्सिटी में तकरीर करते हुए कहा था मुसलमानों तुम्हारा नबी 1400 साल पहले जो कह रहा है हमारी आज की रिसर्च वहीं पहुंची है। फिर कहता है मैं ऐलान करता हूं तुम्हारी किताब में जो लिखा है हमारी सारी एम्ब्रियोलॉजी की सारी रिसर्च वही बता रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मोहम्मद को किसे बताया था अंदर क्या होता है? ठीक अजीब बात सुनिए आप जानते होंगे दौर हमारा वो है कि जिसमें सारी दुनिया में होमोसेक्सुअलिटी को आम करने के लिए क्या क्या हो रहा है। आप में से जो लोग मालूमात रखते होंगे चाहे सोशल मीडिया के जरिए चाहे किसी और के जरिए से, वो जानते होंगे ठीक है क्या क्या चल रहा है दुनिया में। लेस्बियनिज्म, गेइज्म और क्या क्या इज्म, और उसको फैलाने के लिए कितनी मेहनतें चल रही हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। और अगर मालूमात नहीं है तो बहुत अच्छा है, और अगर मालूमात होंगे तो आप जानते होंगे कहाँ दुनिया कहाँ पहुंची। आधी से ज्यादा दुनिया में कानून चल रहा है, ठीक है, उसको अलाउ भी कर दिया गया और जगह जगह जहां भी कोशिशें हो रही हैं। बहरहाल वो क्या करेंगे दुनिया की कौमें उनकी। लेकिन हमारे लिए कितनी अजीब बात यह है जब हम ये कहते हैं कि इस बात का ऐलान 1400 साल पहले हमारे नबी ने किया था ऐसा होने वाला है और आज हो रहा है। उनको किसने बताया? हमारे नबी ने 1400 साल पहले कहा है इन्न मिन अशरात अस्साअ अन यक्तफिर रिजालु बिर्रिजाल व तक्तफि निसा बिन्निसा। तो वही आज हम ऐलान क्या किया। हमारा नबी वो किसी का शागिर्द नहीं, उनको किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा, ठीक है। हमारे नबी ने किसी लॉ कॉलेज में नहीं पढ़ा, लेकिन लॉ बनाया ऐसा कि आज तक उसमें चेंज नहीं हो सकी, और जब चेंज होती है तो बैलेंस हो जाता है। हमारे नबी ने किसी मिलिट्री का साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन जब आपने फौजी होने के हैसियत से जब जंगें लड़ी हैं तो ऐसी हैरत अंगेज जंगी स्कीमें किसी की नहीं होती थी जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और बड़े जनरल ने किताब लिखी इस पर, हम हैरान हो जाते हैं उनकी जंगी स्कीमों पर। दुनिया में कोई फौजी जनरल ऐसा नहीं होगा जो जंग लड़ेगा इसलिए ताकि दुश्मन के लोग कम से कम मरें। मोहम्मद रसूल की ज़ात ऐसी थी कि वो जंग की हिकमत अमली ऐसे बनाते थे कि अगर हम लड़ें तो दुश्मन के लोग कम से कम मरने चाहिए ताकि हम दोबारा उनको इस्लाम पेश कर सकें। चाहे मक्का फतह करने के बाद जब हुजूर निकले हैं ना तो हजारों इंसान मारे जा सकते थे, लेकिन आपने हिकमत अमली ऐसी अपनाई कि जंग हो ही नहीं पाई। और हुजूर ये चाहते थे कि जंग नहीं होनी चाहिए, लोग बच जाने चाहिए, हम फिर उनको इस्लाम पेश करेंगे। मर जाएंगे तो जहन्नम में जाएंगे और जिंदा बच जाएंगे तो हम इस्लाम पेश करेंगे। चुनांचे अल्लाह के नबी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन अबू सुफियान के बारे में ऐलान किया। अबू सुफियान को मुजरिम होने का सवाल ही नहीं, मैं तो ऐलान ये कर रहा हूं जिसके घर में जाएगा वो भी अमन में है। अल्लाह के नबी ने सोशल साइंस नहीं पढ़ी थी, लेकिन सोशल रिफॉर्मिंग के मुताबिक अल्लाह के नबी ने जो कुछ किया दुनिया में कोई भी नहीं कर सका। जितना आपने मुआशरे को कुछ ही अरसे में साफ कर दिया, कोई जुर्म मदीने के सरजमी में नहीं था, ऐसा सुधार दुनिया में कोई कर ही नहीं सका। मुआशरे को इतना अच्छा बना देना कि ना जनाब ना हुक्मरान जालिम, ना जवान बिगड़े हुए, ना औरतों की हत्याएं हो, ना लूट खसूट हो, ना बाजार में मिलावटें हो, ना दफ्तरों में रिश्वतें हो, बिल्कुल पाकीज़ा तरीन सोसाइटी बना देना, इस कायनात में मोहम्मद रसूल से बेहतरीन सोसाइटी को बना नहीं सका। उस नबी को हम नबी मानते हैं तो अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत अता फरमाई है। अब वक्त कम है, मैं शॉर्ट में 2-3 बातें अर्ज करता हूं। अब हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमसे कोई ऐसी गलती न हो जिसके नतीजे में ईमान छिन जाए। वो गलती क्या हो सकती है? हम किसी थ्योरी का शिकार हो जाएं, हम किसी चीज के बारे में समझ लें कि इससे कुछ नहीं होगा और वो कर लें और उसके नतीजे में ईमान खत्म हो जाएगा। हम कोई एक्शन जिसके बारे में हमारा ख्याल हो हमसे क्या इससे क्या होगा और वो कर जाएं और उससे ईमान खत्म हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे याद है ठीक है 1 या 2 साल पहले आपके इसी टाउन के बाजार में एक लड़के ने मुझे कहा था मैं खुदा पर बिलीव नहीं करता हूं। आप किस टाउन हो सकता है आप इसे कुछ जानते भी होंगे, उसे क्या उसकी मालूमात है, क्या उसके पास कुछ भी नहीं, बस एक वे है कि साहब हम भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अगर मानेंगे तो बड़ी पाबंदियां लग जाएंगी और हम चाहते हैं वो पाबंदियां हमको न लगें, हम जैसे चाहें बिल्कुल फ्री लाइफ गुजारेंगे, हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस गरज के लिए कहते हैं हम बिलीव नहीं करते हैं। तो गरज ये कि
ईमान वाले के घरों में कुफ्र वाले पैदा हो जाएंगे और आदमी सुबह को ईमान लेकर के जाएगा, शाम को कुफ्र लेकर वापस आएगा। अल्लाह के नबी ये भी फरमाया है, युस्बिहु रजुलुन मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक आदमी मुमिन होगा, शाम को काफिर हो चुका होगा। तो लिहाजा अच्छी तरह से ईमान को समझना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो मेरा ईमान मुझसे छिन जाए किसी बेवकूफ़ी की वजह से, किसी थ्योरी की वजह से, किसी डिस्कशन की वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से, किसी कंफ्यूजन की वजह से, या किसी ऑर्डर की वजह से, या किसी प्रशर की वजह से, या किसी लालच की वजह से, जो भी चीजें हैं। कुरान में भी अल्लाह ताला ने कई जगह साफ साफ कहा, और कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरदूनकुम मिन बाद ईमानिकुम, बहुत सारे लोग चाहते हैं तुमसे तुम्हारा ईमान छिन जाए। इसमें लोगों को गलतफहमियां भी होती हैं। क्या बहुत सारे लोग समझते हैं ये करने से क्या होगा, हमसे क्या, कैसे ये करने से क्या होगा, इससे क्या होगा, ये जो क्या होगा है ना, ये खुद ही फैसला करना बहुत बड़ी हिमाकत है। क्यों जनाब वाला, आप किसी फील्ड में बहुत आगे हों, आप अपने फील्ड में आगे हैं, ठीक है, ये आपका फील्ड नहीं है। मेडिकल के फील्ड में कोई आदमी टांग नहीं बढ़ाता है ये कह करके इससे क्या होगा, ये तो क्या होगा किससे, ये तो मेडिकल वाले बताएंगे, डॉक्टर बताएगा कि इस दवाई से क्या होगा। हम अगर कितने ही अपने फील्ड में आगे हों, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे साहब मेडिकल हमारा फील्ड नहीं है। कानून की दुनिया में कानून के माहिर की बात, मेडिकल की दुनिया में मेडिकल के माहिर की बात, ठीक है, हर फील्ड में अपने माहिर की बात। तो हम इस्लाम के बारे में खुद ही को फैसला करने लगते हैं कि साहब इससे क्या होगा, मैं बात आपसे कैसे की, आई थिंक का फैसला मैं समझता हूँ कुछ नहीं होगा, या आपके समझने से क्या होगा। इंसान क्यों कहता है मैं समझता हूँ, इंसान को इसलिए कहना चाहिए साहब ये इस्लाम का केस है, इस्लाम से पूछेंगे इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। ये मेडिकल का केस है, मेडिकल वालों से पूछेंगे इस बारे में क्या। जो जिस फील्ड का माहिर होता है उसी से पूछते हैं इसका माहिर। इंसान किसी एक फील्ड का माहिर होता है तो दूसरे फील्ड में कभी दखल नहीं देता है। आज का जमाना तो इल्म का जमाना है। अगर कोई आदमी साइंस का बहुत आगे का टॉप का इंसान का होगा तो आपने कहेगा साहब मैथ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैथ वालों से पूछ गया। अगर कोई ज्योग्राफिया का माहिर होगा और उससे हम हिस्ट्री का सवाल करेंगे तो कहेंगे हिस्ट्री डिपार्टमेंट वो है या ज्योग्राफिया है। हत्ता कि अब तो साइंस के भी शोबे हैं कि साहब केमिस्ट्री वाले से पूछते हैं, कल के साहब ये केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री वालों से पूछो, इसमें भी अलग चीजें कर दी है। मेडिकल की दुनिया में कहते हैं जनाब आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मेरे हार्ट का मसला है, वो कहते साहब मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, हार्ट वाले के पास जाइए। अब हार्ट वाले के पास जाते हैं, मैं सिक्किम वाले के पास जाइए, ठीक है। तो इस्लामी के बारे में हम क्यों कहेंगे साहब मैं फैसला करूंगा किस चीज से क्या होगा। नहीं, इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि मैं समझता हूं ये करने से कुछ नहीं होगा लिहाजा कर लूंगा, और कर लेंगे तो समझ जाइए कि हमने वह जहर पी लिया। अगर कोई इंसान धोखा खा जाए, लिक्विड का धोखा, अगर कोई इंसान लिक्विड का धोखा खाए, क्या पानी भी लिक्विड, जूस भी लिक्विड, दूध भी लिक्विड और कोल्ड ड्रिंक भी लिक्विड, ये सारे लिक्विड हमने खाए, लिहाजा एक और लिक्विड है उसका नाम है तेजाब। चलो एक गिलास में सही एक चमचा पी के देख लें तो खुद ही समझ में आ जाएगा कहां पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद कहेंगे आई थिंक ये लिक्विड, आई थिंक वो भी लिक्विड, आई थिंक आपको पहुंचा देगा कहीं से। ये समझने की चीज है। तो मेरे भाई खुद ही फैसले नहीं करने हैं किस एक्शन से क्या होगा और क्या नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह बचाए कि सुबह को निकले थे ईमान की हालत में और शाम को वापस आए तो ईमान छिन चुका होगा। और उसमें मजीद अलमिया यह है कि आपको पता भी नहीं होता। कुरान करीम अल्लाह ताला कहते हैं व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। बहुत सारे लोग वो हैं जो समझते हैं कि हम ईमान वाले हैं और ईमान की बात अच्छा नहीं है, ईमान खत्म हो चुका है। बस इस बारे में मुझे जो कुछ कहना था वो खत्म। अभी और बहुत सारी बातें कहनी, लेकिन इस टॉपिक को मैं खत्म करता हूँ। अब अगले टॉपिक की बात चंद मिनट में अर्ज करता हूँ। मेरे भाइयों, आप में से जो इस वक्त जवानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आप चाहे टीनेजर हो या 20 साल से आगे 25 साल तक, यानी मान लीजिए मैरिड होने से पहले आपकी जो हालत है, इस हालत को बराह रास्त में आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि आप अच्छी तरह से गौर से सुने। अल्लाह ने आपको 3 बड़ी नेमतें अता की हैं, कम से कम 3 बड़ी नेमतें आपको अल्लाह ने अता की हैं, कम से कम। नेमतें बहुत हैं, बहुत है। और कुरान में भी अल्लाह ताला कहते हैं तो मेरी नेमतों को शुमार नहीं कर सकोगे। वाक़ई ये सही है कि बंदा अल्लाह की नेमतें शुमार नहीं कर सकता। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बहुत नेमतें ऐसी हैं जिनके नेमत होने का इंसान को अंदाजा ही नहीं है, ख्याल ही नहीं आता ये कोई नेमत है, ज़्यादा शुमार भी नहीं करेगा। बस मान लीजिए हम में से शायद 1% मुश्किल से ऐसे होंगे जो ये समझते होंगे कि मुंह के अंदर जो थूक पैदा होता है ये बहुत बड़ी नेमत है। नहीं समझते, ठीक। लेकिन थूक बहुत बड़ी नेमत है और उसके लिए अल्लाह ने पूरा सिस्टम खड़ा किया है। मुंह के अंदर 6 जगह ग्लैंड्स हैं और उनसे पानी निकलता है, उसकी वजह से मुंह अंदर से तार रहता है। अगर थूक पैदा होने का सिस्टम बंद हो जाएगा तो नींद भी खत्म, लुकमा नीचे नहीं उतरेगा। लुकमा जब मुंह में डालेंगे मुंह खुश होगा, जब मुंह खुश होगा तो लुकमा जब चबाएगा तैयार होगा, नीचे उतरेगा ही नहीं। वो उसको जो है वो पानी मिला करके, थूक मिला करके वो जो है वो पिशर बन जाता है। उसके बाद हम नीचे उसको उतारते हैं। चलिए साहब नीचे उतारते हैं, लेकिन नीचे उतारते हुए मैं एक और चीज आपको समझाता हूं जो मेडिकल वाले बता सकते हैं, बशर्ते कि मेडिकल वाले बहुत गहराई के साथ एनाटॉमी पढ़ेंगे और तब समझा सकेंगे। वो ये बात मैं समझाता हूं। तो हम लोग खाना खाते हैं तो चबाते हैं लुकमा, ठीक है। लुकमा चबाने के लिए पूरा एक मशीन काम कर रही है। हाथ ने लुकमा उठाया, तोड़ा, इसके लिए आंख ये है ये सिस्टम। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो लुकमा टूटेगा ही नहीं। अगर ये करना चाहिए तो हमको तो मसला था जैसे बेलची की तरह, तो आप यूं, तो उसके बाद हम लुकमा उठाते हैं, मुंह में डालते हैं। उसके बाद दांतों ने क्रशिंग का काम शुरू किया, जुबान उसको घुमाने लगेगी और मुंह के चारों तरफ से पानी उसको मिलता रहेगा। तो पानी मिल रहा है, थूक लॉब, दांत उसको चबा रहे हैं और चबाते हुए जुबान उसको घुमा रही है और घुमाते घुमाते सारा लुकमा चबाया जा रहा है। इसके बाद लुकमा तैयार हो गया, अब उसको नीचे उतारना है। बस यहां तक तो आप समझ जाएंगे, यहां से आगे नहीं समझ सकेंगे। वो ये है कि नीचे उतारने के लिए हलक के अंदर एक झटका लगता है, तब वो नीचे उतरता है। झटका नहीं लगेगा तो लुकमा नीचे नहीं उतरेगा। ये तो कहते हैं हम। कितनों ने आज तक शुक्र पढ़ा इसका? जब पता ही नहीं तो शुक्र कैसे पढ़ेंगे? जब पता ही नहीं तो शुक्र कैसे पढ़ेंगे? ये झटका, ये आप मुंह में करके देखना, मुंह में पानी रखें, ये यही है। जब तक आप नहीं करेंगे, जब करेंगे उसके बाद पानी नीचे जाएगा। और ये अल्लाह ने जानवरों के अंदर रखा है। घर में गाय होगी, देखना जब वो पानी पिएगी तो यहाँ ढक ढक होगा। ये जो नीचे से झटके लगते हैं, ये झटका लगना अल्लाह का पूरा सिस्टम है। और ये झटका लगने का सिस्टम कैसे है वो एनेटॉमी में जाकर तुमको पता चलेगा, अगर तुम पढ़ोगे। एनेटॉमी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेडिकल मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो कुछ हमने पढ़ा इस बारे में इसलिए कि अल्लाह की कुदरतों को समझे।
अल्लाह की कुदरत को अल्लाह फरमाते हैं अपने तफक्कुर फी अनफुसिकुम, पूछो अपने जिस्म को जान, तुम अपने जिस्म को नहीं देखते मैंने क्या क्या तुम्हारे जिस्म में रखा है और कैसे भी सिस्टम चला। तो आप रात के अंधेरे में सोए थे, बड़ी मजे की नींद थी और नींद में आपको मच्छर ने आकर काटा, आपको नहीं मालूम कहाँ है ना, आपने उसकी आवाज सुनी, ठीक है, मच्छर ने काटा, डेकास्पेट गर्दन में, पांव पर काटा, बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम काम कर रहा है, दिमाग को सिग्नल चला गया कि एक दुश्मन ने हमला किया है, ठीक है, आप सो रहे हैं, दिमाग ने चेक किया ये कहां पर है, नींद में ही, गर्दन पर है कि डेकास्पेट है कि यहां है कि यहां है, दिमाग ने अच्छी तरह टेस्ट किया कहां है ये, उसके बाद दिमाग ऑर्डर करता है हाथ को, और हाथ के पास हथियार मौजूद है नाखून, ये ठीक उसी जगह पहुंच करके ये पिट जाता है, मर्शियों का बहुत अच्छा, ये अल्लाह का, तो गोया हमारी बॉडी में निजाम काम कर रहा है, कम्युनिकेशन काम, यही अल्लाह कुरान में करीम में कहते हैं वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे जिस्मों में मेरी कुदरत की निशानियां हैं। एक दफा एक लड़का मेरे पास आया, वो नई शादी हुई थी, तो वो बेचारा कुछ इधर उधर हो गया था, तो मैंने कहा देखो तुम्हारी नई शादी हुई है और शादी की इब्तिदाई दिन में बड़ी खुशियों की जिंदगी होती है, होती भी चाहिए, और जितनी ज्यादा खुशियां अल्लाह नसीब करे बहुत मुबारक। तो मैंने कहा देखो तुम शादी की प्राइवेट लाइफ में जो मजे उठा रहे हो, उस मजे उठाने के लिए अगर अल्लाह ताला एक चीज भी खत्म कर दे तो क्या करोगे तुम? कहेगा मसलन, मैंने कहा मसलन फर्ज कीजिए तुम्हारा प्राइवेट पार्ट अगर सख्त होना छोड़ देगा और अल्लाह ने सिस्टम रखा है जिसकी वजह से अचानक सख्त हो जाता है, अगर वो सख्त नहीं होगा तुम क्या करोगे? सोचने लगा, कहते हैं हाँ ये तो सही है, मैंने कहा वही अल्लाह जिसने ये निजाम बनाया, कह लगे मैंने मान लिया अल्लाह है, इसने भी मान लिया, सही है। एक दफा कश्मीर वहां मद्रास से मुझे लड़के ने फोन किया, कह लगे हम चेन्नई में हैं, मैंने कहा ठीक है, कहाँ के हो? कह लगे जी कश्मीरी है, मैंने कहा ठीक है, क्या बात है? कह लगे जहाँ लड़का कश्मीरी है वो कहता है कुछ खुदा मान, मैंने कहा कहाँ है वो? कह लगे यही है, मैंने कहा दे दो, उसने दिया फोन, मैंने कहा देखो तुम मद्रास में हो, तमिलनाडु में चारों तरफ से कोकोनट के दरख्त होते हैं, चारों तरफ जिधर देखोगे कोकोनट के दरख्त लंबे लंबे, जैसे कश्मीर में फ्रस जिधर देखोगे फ्रस, ऐसे ही वहां मद्रास में जिधर आप नजर डालेंगे कोकोनट लंबे दरख्त सीधे और ऊपर से पत्ते और फिर उठ गोले। मैंने कहा नजर आ रहे हैं दरख्त? कह लगे जी हाँ वो तो है, वहाँ मैं रहा हूँ मद्रास में, बेंगलोर वगैरह साउथ इंडिया में। मैंने कहा देखो उसके ऊपर जो गोला है उस गोले के अंदर बड़ा मजेदार पानी होता है, कभी जहाँ होता है। मैंने कहा देखो ये मजेदार पानी अंदर कहाँ से आया? बारिश का पानी अंदर जा नहीं सकता क्योंकि वो सख्त है, नीचे से पानी ऊपर चढ़ नहीं सकता क्योंकि नीचे से कोई पाइप नहीं, तो पानी अंदर कहाँ से आ गया? मैंने कहा वही अल्लाह जो वहां वो मजेदार पानी पहुंचाता है। अब कैसे पहुंचाता है वो तुमको बात नहीं पड़नी, तो अल्लाह की हज कुदरत बता रही है। तो मेरे भाई अल्लाह ने हमें, मैं टॉपिक पर वापस आता हूं, अल्लाह ने तीन चीजें आपको अता की हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 फ्रेश मुकम्मल जवानी, नंबर 3 अच्छा किरदार। ईमान, कैरेक्टर और हेल्थ, शानदार जवानी है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं, कोई कमी नहीं। दुनिया में अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, पागल भी हैं, एबनॉर्मल भी हैं, मेंटली एबनॉर्मल, फिजिकली एबनॉर्मल। अगर अल्लाह ने आपको पूरी जवानी दी है, ये भी हो सकता था हम उनमें से होते जो किसी भी एतबार से, जिस्मानी एतबार से कमियों का शिकार है, जवानी अता की है, तो बहुत बड़ा एहसान अल्लाह का है। कर नहीं और क्या क्या बनकर नहीं। अब आज के जवान का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो अपने ईमान को बचा ले, अपनी सेहत को, और बहुत मुश्किल है, आसान नहीं। क्यों? आपके घरों में, आपके कॉलेजों में, आपके कोचिंग सेंटरों में, आपके बोर्डिंग इदारों में, आप घर से बाहर जहां जाएंगे वहां इन तीनों चीजों को खतरात ही खतरात हैं, और जब आप अपने आप से बहुत लड़ेंगे तब आप बचा पाएंगे, नहीं लड़ेंगे तो बचा नहीं पाएंगे। बल्कि ऐसा हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड, आपका घर बहुत अच्छा हो, लेकिन आगे माहौल में आकर बिगड़ जाए। जनाब मुमकिन है कि आपके घर वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि वो ड्रग्स करेंगे और आप ड्रग्स में फंस चुके होंगे। मुमकिन नहीं है कि आपके घर वालों ने सोचा होगा हमारे घर में कभी शराब आएगी और आप शराब में फंस चुके होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके वालिदैन सोच भी नहीं सकते थे उस बात को और आप वो करेंगे। और उसका नजारा कभी कभी होता है दर्दनाक नजारा। वो क्या होता है कि जब बाप कहता है बेटा मेरा सब कुछ तुझ पर कुर्बान, लगाए भला लगाए अच्छा की, और जब बाप सुनता है मेरा बेटा ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, वही लगाए अच्छा की, मेरी जान तुझ पर कुर्बान। मेरी माँ, वही माँ जब देखती है कि मेरा बेटा क्या क्या कर रहा है, तो वही माँ कहती है अफसोस तू मेरे पेट से क्यों पैदा, काश आसक में जाऊं। वही माँ कहती है। इसलिए मैं जिम्मेदारी समझता हूं कि आपसे, आपके ज़मीर को खिताब करके मैं आपसे कहूं कि आप अपनी ईमान, अपनी किरदार और अपनी सेहत की हिफाजत करो। ऐसा न हो कि तुम वो करते होंगे जिसके नतीजे में आगे चल करके तुम्हारी सेहत तबाह हो चुकी होगी। जनाब वाला, इस वक्त हमारी मार्केटों में जो चीजें खाने को मिल रही हैं उनमें से टेस्ट तो है, सेहत के लिए जहर है। रिसर्च करके देखो कोल्ड ड्रिंक्स पर, रिसर्च करके देखो आप जंक फूड पर, रिसर्च करके देखो आप चॉकलेटों पर और कुरकुरे रेजों पर। इन चीजों के खाने से आपके फायदे क्या क्या हैं और आपके सिर्फ टेस्ट नुकसान हो सकता है। इसलिए अपनी सेहत की फिक्र करें। और जब मैं कह रहा हूं सेहत की फिक्र, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको खुद समझनी चाहिए कि हमको अपनी सेहत बचाने के लिए क्या क्या करना है और किन किन चीजों से बचना है। और जब सोचेंगे तो बहुत दूर तक आपकी नजर जा सकती है कि किन किन चीजों से आपको बचना होगा। और अगर आप उनमें बचने में कामयाब हो गए तो ठीक आपकी सेहत बच जाएगी। वरना जनाब ऐसा हो सकता है कि तुम आगे चल करके तुम्हारी शादियां होंगी उस पर तुम्हारी फैमिली लाइफ फेल हो जाएगी, क्योंकि तुम अपनी सेहत को तबाह कर चुके होंगे। और ये अल्लाह के नबी ने फरमा दिया ऐसा होगा। हुज़ूर ने फरमाया ना कि जद मलऊन, जो अपने हाथों के साथ निकाह करते हैं उनको लानत है। तो बड़ा इम्तिहान है आपके लिए। इम्तिहान क्या है? आप जवानी की जिंदगी में है, जल्दी शादियां होनी होंगी, क्यों नहीं होंगी? यहाँ का समाज का सिस्टम यह है कि जब तक आपकी तालीम मुकम्मल नहीं होगी, कि जब आप अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे, जब कमाने लगेंगे, तब आपके घर वाले आपकी बात सोचेंगे। तब तक आपको होल्ड पर रहना है और तब तक आपको अपने आप को बांध करके रखना है। जनाब आपको कितनी ही प्यास लगी होगी, आप यहाँ का समाज आपको पानी तब तक नहीं देगा। समाज हमारा ये कहता है पहले आपको पढ़ना है, डिग्री करनी है, जब आप कमाने लगोगे तब आपको पानी मिलेगा। समझ ये है यहाँ का, और इसको चेंज नहीं कर सकते। काश यहाँ के वालिदैन को समझ में आ जाए कि वो अपने बच्चों के जल्द से जल्द रिश्ते करें, उनको लटका करके न रखें, जिसकी वजह से वो तरह तरह के गुनाहों में फंसकर तबाह हो जाते हैं। काश वालिदैन को रहम आ जाए और ये समझ बदल जाए और रिश्ते जल्दी हो। जनाब वाला यहाँ का माहौल ये है कि करोड़पति इंसान 10-10 नौकरों को खिलाने को तैयार है, लेकिन जवान बेटी की शादी करने को तैयार है। तो मैंने जवान दिया तो क्या खाएगी कहां से? वो 10 नौकरों को खिला रहा है वो, लेकिन उसकी बीवी को खिला गया, अपने पांव पर खड़ा हो जाए पहले तब।
اور لڑکی والے بھی کہتے ہیں جناب تمہارا لڑکا کچھ نہیں کرتا ہے تو بعض رسمس میں تو بچ کراں کیا. اس وقت یہ نہیں کہتا یار اللہ نے تو سب کچھ دیا, میرا بیٹا کچھ نہیں کر رہا, تمہاری بیٹی کو تھوڑے ہم پھاکے مرنے دیں گے. صورتحال یہی ہے, صورتحال یہی ہے کہ اگر ہمارا نوجوان لڑکا بیکار ہے, اس کو کھانا بھی مل رہا ہے, اس کو کپڑے بھی مل رہے ہیں, اس کو پیاس بھی مل رہی ہے, اس کے شوق بھی پورے ہو رہے ہیں, اس کو 50,000 روپے لے کے موبائل میں مل رہا ہے, تو اگر اس کی شادی کی ضرورت ہے وہ کیوں نہیں پوری کر رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں تب تک نہیں کریں گے جب تک یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہوتے یہاں کے لڑکے 35 کو پہنچ جاتے ہیں, یہاں تک کہ 40 کو بھی پہنچتے ہیں. تو جوانی کی بہاریں گر چکی ہیں, وہیں سے واپس لو سونا آفتاب, دوپہر کے بعد آپ ڈھلتا ہے نیچے کو. تو یہ سیدھی بات ہے 35 سال کے بعد آپ نیچے کو ڈھلتا ہے, تب ڈھلنے کی عمر میں آپ کہتے ہیں اب آپ کے قابل بیوی آ گئی, اب گزرا. اس کے بعد پھر یہ بڑھاپے کو ہوتے ہیں بچے اتنے چھوٹے چھوٹے, جناب بچم خام 500 گزر ریٹائر گوس میں کیا کر, یہی ہوتا ہے. لیٹ میرے طرح طرح کے نقصانات. میرے بھائیوں میں بس اسٹارٹ میں کر رہا ہوں, آپ کی جوانی آپ کے ہاتھوں میں امانت ہے, اپنی ایمان کو بچانا, اپنی صحت کو بچانا, اپنی کردار کو بچانا. اور کردار کو بچانے کے لیے چند چیزوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے, اور آسان نہیں, بہت مشکل ہے. چند چیزوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے مگر آسان نہیں, بہت مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کو مزہ آئے گا ڈانس دیکھنے میں, آپ کو مزہ آئے گا میوزک سننے میں, آپ کو مزہ آئے گا سیکچوئل سین دیکھنے میں, آپ کو مزہ آئے گا سیکچوئل باتیں کرنے میں, آپ کو مزہ آئے گا اللہ بچائے ڈرگس کی طرف پھنس گئے ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں, اور آپ کو مزہ آئے گا کسی کا پیچھا کرنے میں, بلکہ آپ کو مزہ آئے گا یہ کہنے میں کسی کا عاشق ہوں, میں کسی کا معشوق ہوں. یہ اور یہ سارا زہر ہے یہ ساری مزیدار چیزیں, اور یہ سارا زہر. جو نوجوان تم میں سے بچا ہوا ہے اس کو بہت اپریشیٹ, اور میں اور آپ اور آپ کے والدین کریں یا نہ کریں, اللہ اور اللہ کے نبی آپ کو مبارکباد دیتا ہے. ٹھیک, کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا؟ وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی برے کاموں سے بچائی ہوگی, قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. وہاں علماء کا نام نہیں لکھا, اولیاء کا نام نہیں ہے, وہ جوان کا نام پہلے آیا. میں بہت توجہ کے ساتھ وہ حدیث پڑھی تھی, میں دیکھتے ہیں کون کون لوگ ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. تو وہاں پہلے نمبر پر حکمران, مگر آج یہ نہیں, وہ فاروق اعظم جیسا حکمران. اور دوسرے نمبر پر جوان, مطلب یار نہ مولوی صاحب کو نہیں, نہ پیر صاحب کو نہیں, نہ باقی صاحب کو نہیں, عجیب. اور تیسرے نمبر پر ایک اور ہے, اللہ اکبر, بہت دلچسپ. تیسرے نمبر پر کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جوان جس کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے, رکاوٹ کوئی نہ ہو, اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں جاؤ. میں الفاظ سناتا ہوں, مجھے الفاظ یاد ہے, ٹیکسٹ یاد ہے. رجل, ایسا انسان, دعت ہو, دعوت دے, امرأۃ, عورت, ذات جمال, خوبصورت, وحسب, اونچے خاندان کی, فقال, یہ جواب میں کہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں نہیں کر سکتا. بہت مشکل ہے جناب اوائڈ کرنا جب آپ کو وہیں سے آفر آئے گا, اور بڑے بڑے لوگ گر جائیں گے وہاں. بہت مشکل ہے جب آپ کو وہیں سے فون آئے گا, اور جب بہت مشکل ہے جب آپ کو کہے کہ اگر تم مانا تو ٹھیک, میں زہر بخارے پہنچ میں, یہ تو کشمیر کہتے ہیں. بہت مشکل ہے. اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو بہت مبارک, اور اگر بچے ہوئے نہیں تو مایوس نہ ہو. آج یہ توبہ کر لیں, یا اللہ میں نے بلا ماری سب کو. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ایک جوان کے توبہ کرنے پر. آپ بہت بڑا میڈل لے سکتے ہو. میرے نوجوان بھائیوں, آپ کو اگلی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے, یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے, مقابلوں کا زمانہ ہے, اور معیار کے ساتھ زندگی گزارنے کا زمانہ ہے. اور اس کے لیے آپ کو بڑی تیاریاں کرنی ہیں. ان بڑی تیاریوں میں اپنا دین بھی بچانا ہے, اپنا ایمان, اپنا کردار, اپنی صحت, اور پھر اگلی زندگی آپ گزاریں گے. اس اگلی زندگی میں آپ کو روزگار بھی چاہیے, آپ کی شادی بھی ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہیں, ہوں مگر ایمان نہ ہو, کردار نہ ہو, تو آپ کیا کہیں گے صاحب بڑی لگژری لائف ہے مگر بد کردار ہے, ایمان سے محروم ہے, مجرم ہے, اور کرپٹ انسان, اور کیا کیا. اس کے مقابلے میں اگر آپ کامیاب, آپ کہیں کہ بہت مشکل ہے. نہیں نہیں, مشکل نہیں ہے. اسی کشمیر کے ایسے جوان بھی ہیں جن جوانوں کے حالات سن کر آدمی حیران ہوتا ہے, یار ایسے بھی ہیں جوان. اور اسی کشمیر میں ایسے جوان بھی ہیں جن کے تباہ حال سن کر آدمی سوچتا ہے کیا ہو گیا. دونوں قسم کے جوانوں کی کہانیاں سامنے. اسی کشمیر کا جوان ہے, میں جانتا ہوں اسے, مجھ سے بہت دفعہ ملے, میں ان کے گھر بھی گیا. وہ اس وقت ہالینڈ میں ہے, ٹھیک, اور عام نہیں, اعلیٰ درجے کا سائنٹسٹ, مکمل نمازی. اب اسٹارٹ میں رہ کر کے ڈر لگتا ہے. اور ابھی جب مجھے 2 ہفتے پہلے ملے تو کہنے لگا یہ جملہ اس کا تھا, الحمدللہ رب العالمین, پچھلے 1 سال سے میرا تہجد نہیں چھوٹا ہے. میں نے کہا یا اللہ یار تجھے کیا تھی. میں اسٹارٹ میں کہا مجھے شک کیسے, کہنے لگا ہاں ایسا ہی کہ میں تہجد پڑھتا ہوں, فجر کے بعد پڑھتا ہوں, پھر سوتا ہوں, اور 10 بجے پھر آفس جاتا ہوں. میں نے کہا وہاں کی صورت حال, کہنے لگا پانی مہنگا ہے, شراب سستی, ٹھیک, اور کہنے لگا گناہ بالکل آسان ہے, جب چاہیں ہم جہاں چاہیں جیسے, بلکہ کرنا نہیں ہے, وہیں سے آفر آتا ہے. ایمسٹرڈم وہ شہر ہے جہاں شام کو کارڈ لے کر کے لڑکیاں کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کون ہمارے ساتھ رات کو آئے گا, پیمنٹ ہم خود ہی کریں گے. اس شہر میں ہے کشمیر کا نوجوان, ٹھیک ہے, گناہوں سے پاک صاف. تو آپ کیوں مایوس ہوں گے. بس مجھے جو باتیں اس وقت کرنی تھی, ٹائم کم ہے, شاید میں وہ باتیں کر سکا, اور بھی بہت ساری ضروری باتیں تھیں, مگر اب دوسرا اہم پروگرام ہے, اس لیے میں اپنی مختصر سی گفتگو کو اس پر ختم کرتا ہوں. کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے غم کے ساتھ فرمایا تھا, لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہارے جوان بگڑ جائیں گے. تو صحابہ کو بہت تعجب ہوا, ہمارے جوان کیسے بگڑیں گے. اللہ کے نبی فرمایا ہاں ایسا ہوگا, کیونکہ ماحول اسی قسم کا ہوگا. آپ عہد کرو انشاءاللہ ہم اپنی ایمان, اپنے کردار, اپنی صحت کی حفاظت کریں گے, اور اس حفاظت کرنے کو ہم اپنا چیلنج بنائیں گے. چیلنج کیا ہے میرا, کہ جس دن میری شادی ہوگی میں فخر کے ساتھ کہوں گا میں بالکل پاک صاف, میں فخر کے ساتھ کہوں گا میں مومن, میں فخر کے ساتھ کہوں گا میں محمد رسول اللہ کا. اور آپ ایک چیز اپنا موضوع بناؤ, دنیا میں اسلام کے خلاف جو بولنے والے ہیں, جو لکھنے والے ہیں, آپ اپنا ایشو بناؤ کہ ہم ان کا جواب دیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, آپ اسلام کو پڑھیں گے, اور جب پڑھنے لگیں گے تو آپ کو خود آپ اسلام کی طرف نمائندہ بنو گے. سوشل میڈیا چلا رہے ہیں آپ, بہت اچھا, تو چلاؤ نا سوشل میڈیا ان لوگوں کے خلاف جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, جواب دو. اب آپ کے پاس جواب معلوم نہیں ہے, اب ڈھونڈیں گے جواب, پوچھیں گے ایک سے دوسرے سے. کتنے نوجوان لڑکے مجھے سوالات پوچھتے رہتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے لڑکے نے مجھے فون کیا, کرسچن کا لڑکا ہے اور چندی گڑھ میں ہے, کہہ لگا جی میرے ساتھ کرسچن ہے, ٹھیک, اور وہ یہ سوال کرتا ہے, یہ سوال کرتا ہے, یہ سوال کرتا ہے, مجھے جواب بتائیے. میں کہا ابھی میں آدھے گھنٹے بعد تم کو جواب بتاؤں گا. آدھے گھنٹے بعد میں نے جب اسے جواب بتایا اور اس کے بعد اس کو سنایا, اس نے سارے جواب, اس نے کہا یار مجھے لگتا ہے تمہارا دین سچا دین ہے. یہ لڑکا یہ کہہ رہا تھا مجھے جواب بھی معلوم نہیں, اور جب جواب اس کو جب سنایا, اس کو جواب جو مل گیا تو کہنے لگا آپ کا دین سچا ہے, میں سوچوں گا. یہ لڑکا مجھے فوراً فون کر کہتا ہے ایم ایس گولڈ سرنڈر, اور وہ کرسچن تھا آگے سے. تو آپ ڈھونڈیں گے جوابات, اور جواب ڈھونڈ کر کے آپ کو خوشی ہوگی مجھے جواب ملا. آپ جب اگلے کو بتائیں گے, اور آج کا ذہن جو ہے وہ اوپن ذہن ہے, ٹھیک, آرگیو کریں اچھی طرح سے, ریزن پیش کریں, سمجھائیں لوگوں کو, لاجک پیش کریں, اور پوچھیں لوگوں سے, تو آپ اسلام کے نمائندہ بن کر کے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جس فیلڈ میں میں نہیں ہوں, جس فیلڈ میں آپ جس دوسرے علماء نہیں, اس فیلڈ میں آپ جا کر کام.
اللہ آپ کی جوانی کو آپ کے گھر والوں کے لیے نہیں پوری ملت کے لیے سرمایہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔